السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں میں ایک پراسرار دل کو دہلا دینے والی خونی قاتل گڑیا کی عجیب اور غریب داستان جس پر جادو کیا گیا تھا۔ آئیے سنتے ہی سچ بیانی، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو دبائیے۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا۔ بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اس سے چھوٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد، بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا فہد۔ سب بچوں کی عمر میں کم و بیش 1-2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی بیٹی سارہ تھی جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا ہے، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ امی، وہ جو سامنے درخت ہے نا بڑا سا، اس کے نیچے پڑی ہوئی ملی ہے، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحب، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں، رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کر اپنا کام کرو، ہمارے گھریلو معاملے میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، کام سے کام رکھو۔ رضیہ منہ بنا کر چلی گئی۔ امی، کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو رہے تھے، زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی، وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں۔ ان سب کی شکلیں بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھی اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف تھا۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون جاری تھا۔ سب نے ایک اونچا ایک ساتھ کہا لگایا، پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی اور وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہیں کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی، چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسا ہی بند رہا۔ اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ کمرے کا بلب پہلے بند ہو گیا تھا، پھر جل گیا، پھر بند ہو گیا، ایسا مسلسل ہو رہا تھا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت ہی تیز ہو گئی، بھیانک، دل لرزا دینے والی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا ابھی اس کے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی جل گیا۔ ثانیہ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی آواز میں رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی آواز میں گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا بھیانک واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زویا اپنی اسی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں میں وہ گڑیا دیکھی تو کھینچ لی۔ پھپھو، یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑیں میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مسز بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا صبح صبح؟ زویا کے کمرے میں بھابھی پہنچی۔ کیا ہوا زویا؟
कमरे में दाखिल होते ही बोली, अम्मी ये देखें फुप्पो को, मेरी गुड़िया खींच रही हैं, मुझे देती नहीं हैं, छीन कर ले जाना चाहती हैं। भाभी ये गुड़िया ठीक नहीं है, आप इसको फौरन बाहर फेंक दें। अरे चल, तू तो है ही सदा की पागल, दफा हो यहाँ से, भाभी चिल्लाई। नहीं भाभी, मेरी बात सुने। इससे पहले कि सानिया कुछ और बोलती, भाभी ने सानिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाया। सानिया मुंह के बल फर्श पर गिर गई। बिलाल, बिलाल, भाभी चिल्लाई, क्या हुआ? क्यों शोर मचाया हुआ है? देखो, तुम्हारी बहन ने मेरी बेटी को मारा है और मुझ पर भी हाथ उठाया है। नहीं नहीं भाई, भाभी झूठ बोल रही हैं। इससे पहले सानिया कुछ और बोलती, बिलाल ने सानिया को पकड़ा और फर्श पर घसीटता हुआ उसे उसके कमरे में ले गया और उसे कमरे में लॉक कर दिया। भाई, भाई मेरी बात सुने, वो गुड़िया ठीक नहीं है, उसके अंदर कुछ और है, कुछ है उसके अंदर, आप समझ नहीं रहे हैं। उसको फेंक दें, वो हमारे घर को तबाह कर देगी। मगर सानिया की किसी ने ना सुनी। सानिया की माँ तो पहले ही मर चुकी थी। बाप अय्याश किस्म का आदमी था, भाई अपनी बीवियों के गुलाम थे। बेचारी सानिया को सारा दिन कमरे में लॉक कर दिया जाता। बाज़ औक़ात तो उसको 2 वक्त की रोटी भी न मिलती। सानिया दरवाज़ा बजाती रही, रोती रही, मगर किसी जालिम ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी नहीं दिया गया। भूख के मारे सानिया बेहोश हो गई। रात को जब सानिया की आंख खुली, सानिया ने जब आंख खोली तो वो गुड़िया सामने खड़ी थी। क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहिए? सानिया चिल्लाई। वो गुड़िया चुपचाप खड़ी रही, सानिया को तके जा रही थी। फिर सानिया ने जो मंजर देखा उसने उसका दिल दहलाकर रख दिया। उस गुड़िया ने छलांग लगाई और दीवार पर चढ़ गई। फिर उसने एक चाकू पकड़ा और अपने पेट में मारा। उसके पेट से खून रिसने लगा, बह रहा था पानी की तरह। ये देखकर सानिया ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और रोने लगी। कुछ देर बाद सानिया को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। उसकी आंखें खुली तो खाना उसके पास पड़ा हुआ था। वो किसी भूखी बिल्ली की तरह खाने पर झपटी और खाना खाने लगी। पेट भरने के बाद सानिया के जहन में गुड़िया वाला वाक़या एक मर्तबा फिर गर्दिश करने लगा। उसे घर वालों की बहुत फिक्र थी। उसके जहन में किसी आमिल से रुजू करने का ख्याल आया, लेकिन उसके पास किसी आमिल का नंबर भी तो नहीं था, ना ही उसके पास मोबाइल था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। पारसा भाभी को प्यास लगी, लेकिन पास रखे हुए जग में पानी नहीं था, लिहाजा वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ चल दी। पानी पीकर जैसे ही भाभी वापस मुड़ी, जोया की गुड़िया सामने शेल्फ पर बैठी हुई थी। जोया ने अपनी गुड़िया कहाँ रख दी? पारसा बोली। अभी वो गुड़िया को उठाने ही लगी थी कि गुड़िया खुद ब खुद हंसने लगी। पारसा ने जब गौर किया तो उसके होंठ हिल रहे थे और वो अपनी पलकें भी झपका रही थी। ये कैसे हो सकता है? पारसा हैरान होते हुए बोली। अचानक उस गुड़िया की आंखों से खून निकलने लगा। ये देखकर भाभी कांपने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गुड़िया अब गाने लगी। गुड़िया के गाने की आवाज़ तेज हो गई थी। पारसा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और हिम्मत करके बाहर की जानिब भागी, मगर किचन का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखने से पता चला कि वो कोई और नहीं, जोया की गुड़िया है। गुड़िया ने चाकू निकाला और भाभी के गले पर दे मारा। वो लरसते हुए नीचे गिर गई, तड़पने लगी। फिर गुड़िया ने उसके गले में से चाकू निकाल दिया तो उसके गले से खून का फव्वारा फूट गया। फिर गुड़िया ने अपना मुंह पारसा के गले को लगा लिया और उसका खून पीने लगी। जब भाभी के जिस्म से खून का एक एक कतरा उसने निचोड़ लिया तो गुड़िया ने गले की उस जगह पर जहाँ चाकू मारा था वहाँ चाकू की नोक रखी और चाकू को धकेलते हुए पूरा जिस्म चीर दिया। पूरा गोश्त निकलकर बाहर लटकने लगा। गुड़िया पारसा का गोश्त खाने लगी। पारसा तो कब की इस दारे फानी से कूच कर गई थी। सानिया कमरे में आई, बेड पर बैठी, एक के बाद एक दूसरे आमिल का नंबर मिलाया। दोनों ही ने फ़ोन नहीं उठाया। खुशकिस्मती से तीसरे आमिल का नंबर मिल गया। दुआ सलाम के बाद सानिया ने आमिल साहब को पूरी कहानी सुना दी। वाज़ेह किया उन्होंने कि वो गुड़िया सबकी जान लेना चाहती है, लेकिन एक हैरानगी की बात यह है कि वो तुम्हें कुछ कह नहीं रही है, बस ज़हनी अजियत पहुँचा रही है, जिससे साबित होता है कि वो तुम्हारी खैर ख्वाह तो नहीं है, पर वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुँचा रही, जिसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह है। दूसरा ये कि तुम्हारे घर वालों को उससे ज़्यादा खतरा है। तुम नमाज की पाबंदी करो, मैं जल्द तुम्हारे घर आने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर आमिल साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर के बाद सानिया के कमरे में मिसेस मुजम्मिल दाखिल हुई। क्या चुराकर भागी थी? पाकीज़ा भाभी ने सानिया से सवाल किया। नहीं भाभी, कुछ नहीं, वो बस चोरी कर रही थी। तुझे मैं बताती हूँ, ये कहकर पाकीज़ा भाभी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी ने पास रखा डंडा उठाया और सानिया को मारने लगी। सानिया बेचारी मुसलसल रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन भाभी ने एक ना सुनी। सानिया को मारने के बाद पाकीज़ा भाभी कमरे से चले गई और सानिया बेचारी दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रही थी।
اور فرش پر لیٹی कुर्राह रही थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद रजिया सानिया के लिए खाना लेकर आई तो सानिया को फर्श पर लेटे देखा। सानिया की आंखें बंद थी। बीबी जी खाना ले आई हूँ, खाना खा लें, रजिया बोली, मगर सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बीबी जी क्या हुआ आपको? रजिया ने सानिया के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सानिया ने अपनी आंखें खोल दी। क्या हुआ था आपको? वो जरा चक्कर आ गए थे। बीबी जी मैं जानती हूँ, पाकिज़ा बीवी ने आपको बहुत मारा है। मैंने उनको आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। रजिया उनकी बातों को छोड़ दो। तुमने जोया के पास वो गुड़िया देखी? जी मैंने देखी, पर मुझे वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं लगती। रजिया ने जवाब दिया। रजिया तुमने सही बोला, वो कोई आम गुड़िया नहीं, वो शैतानी गुड़िया है जो घर में मौजूद सब लोगों को मारना चाहती है। मगर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता है। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है बीबी जी। अब आप रोटी खा लें, मैं चलती हूँ। ये कहकर रजिया कमरे से बाहर चली गई और सानिया खाना खाने लगी। सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी। एक आमिल साहब तशरीफ लाए। जी कौन? मैं अहमद हूँ, मुझे सानिया बेटी ने बुलाया है। गालिबन आपके घर में शैतानी ताकतों का राज है। अहमद साहब मुजम्मिल से मुखातिब हुए। रुकें जरा, गार्ड इधर आओ, मुजम्मिल चिल्लाया। इसे धक्के देकर घर से निकालो। इसको क्यों अंदर आने दिया? साहब मेरी बात सुने, आप बहुत बड़ी मुश्किल में है। अरे चल, बहुत देखे हैं तुझ जैसे, मुजम्मिल ने सख्त लहजे में कहा। गार्ड ने अहमद को धक्के देकर निकाल दिया। रजिया सानिया को बुलाओ, मुजम्मिल चीखा। जी साहब बुलाती हूँ। रजिया भागी हुई गई और सानिया को लेकर आई। सब घर वाले जमा हो गए थे सिवाय पारसा के। ये बदकार कौन था? ये अहमद, ये बहरूपिया तेरा यार है ना? मुजम्मिल चिल्लाया। मुजम्मिल मैंने भी सानिया को किसी से बात करते हुए सुना था, शायद कोई अहमद नामी आदमी था। नहीं भाई, आमिल साहब हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। उनको मैंने ही बुलाया है क्योंकि हमारे घर में एक गुड़िया है और वो गुड़िया शैतानी गुड़िया है। सानिया से बोला नहीं जा रहा था, अटक अटक कर बोली। क्या वो लगा रखी है? क्या गुड़िया लगा रखी है? सीधी बात बता। इस मर्तबा जैन चिल्लाया। भाई हमारे घर में एक गुड़िया है, उस पर शैतानी ताकतों का साया है। आपको यकीन नहीं तो रजिया से पूछ लें। सानिया ने रोते हुए जवाब दिया। सनम, जैन की बीवी ने रजिया को बुलाया। अब पूछो इससे जो पूछना है। रजिया बताओ इनको, वो गुड़िया शैतानी है। सानिया ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रजिया ने जवाब दिया। झूठ बोल रही थी। सानिया ने रजिया की तरफ हैरत से देखा। सुन लिया? अब पाकिज़ा बीवी बोली। ये सुनकर मुजम्मिल ने बेचारी सानिया को बहुत पीटा, सबके सामने मारा, जबकि पाकिज़ा और सनम पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेचारी सानिया किसी लाचार जानवर की तरह मार खाती रही। पाकिज़ा आंटी, आपने मामा को कहीं देखा है? जोया रोते हुए बोली। नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा, पाकिज़ा ने जवाब दिया। मामा मुझे नहीं मिल रही हैं, जोया बोली जा रही थी। अच्छा बेटा, मैं देखती हूँ, आप रो नहीं। घंटे तक पाकिज़ा, सनम और सब घर के नौकर ढूंढते रहे उसको, मगर पारसा नहीं मिली। बिलाल भी घर आ गया था। अचानक चीख की आवाज आई। ये तो जोया की आवाज है, बिलाल बोला। सब ने जोया के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। जोया अंदर खड़ी थर थर कांप रही थी। क्या हुआ बच्चे? बिलाल ने जोया से सवाल किया। जोया ने बेड के नीचे इशारा किया। बिलाल ने जब बेड के नीचे देखा तो वो कोई और नहीं, पारसा थी। उसको बाहर निकाला गया। ऐसा लग रहा था उसे किसी जानवर ने चीर फाड़ कर रख दिया हो। पारसा की बहुत बुरी हालत थी। बिलाल तो ये देखकर बेहोश हो गया। हो ना हो ये काम उसी बदकार सानिया का है, सनम बोली। ये सुनते ही बिलाल सानिया के कमरे की जानिब भागा। मेरी बीवी को क्यों मारा तूने, बता, बिलाल ने सानिया के बाल खींचते हुए कहा। नहीं भाई, भाभी को मैं क्यों मारूंगी, मुझे पता था ये नहीं मानेगी। बिलाल साहब, आप पुलिस को बुलाइए, पाकिज़ा बोली। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, मैंने नहीं मारा भाभी को। सानिया बिलाल के पाँव पड़ गई। बिलाल ने फोन करके पुलिस को बुला लिया और कुछ ही देर में पुलिस आ भी गई। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा लो भाभी, सानिया बारी बारी सबके आगे हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी। मैं आप लोगों की बांदी बनकर रहूंगी, मुझे बचा लें, सानिया रोते हुए बोल रही थी। मुजम्मिल पुलिस को अंदर ले आया। यह है कातिल। मुजम्मिल ने अपनी बहन, सगी बहन सानिया की तरफ इशारा किया। चलो लगाओ इसको हथकड़ियाँ, शाहिद ने कहा। पुलिस ने सानिया को हथकड़ियाँ लगाई। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे बचा ले, सानिया रोते हुए बोल रही थी, मगर किसी ने बेचारी की एक नहीं सुनी। पुलिस सानिया को घसीटते हुए ले गई। जोया की गुड़िया को एक खौफनाक औरत ने, जिसके मुंह से टपक रहा था खून, अपनी गोद में रखा हुआ था। गुड़िया की आंखों से खून निकल रहा था। जिस कुर्सी पर वो गुड़िया बैठी थी वो तेज तेज हिलने लगी। टीवी लाउंज में लगा फानूस नीचे गिर गया। फहद जो कमरे में लेटा था, उसके मुंह से खून जारी हो गया। अभी सब खड़े सानिया का तमाशा देख रहे थे कि टीवी लाउंज में लगा फानूस
اپنے آپ ہلنے لگا اور دھڑام سے فرش پر گر گیا۔ سب اچانک پیچھے ہو گئے۔ فانوس کے نیچے سے خون خود بخود نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران اور پریشان کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں کہہ رہی کہ گھر میں شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے؟ پاکیزہ نے سوچا۔ نہیں، وہ تو تھی ہی جھوٹی، اچھا ہے بلا ٹل گئی۔ یہ سوچ کر پاکیزہ نے اپنے خیال کو جھٹلا دیا۔ مزمل کے فون پر گھنٹی بجی۔ جی السلام علیکم۔ فون پر کسی اجنبی کی آواز تھی۔ آپ مسٹر زید کے بیٹے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے باعث مسٹر زید انتقال کر گئے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے اگلی قسط میں؟ آخر کون ہے یہ گڑیا جو سب کو باری باری مار رہی ہے، اور ثانیہ پر جس نے اب تک حملہ نہیں کیا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط